आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाल्की के टाउन हॉल के पास कर्नाटक फ्लैग का 25 फीट लंबा पोल को अज्ञात लोगों ने काट दिया। स्थानीय संगठनों ने जताया विरोध। धार्मिक कट्टरता चरम पर, देश के लिए खतरनाक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में स्कूल की छत पर फटा बम, दूर तक सुनी गई धमाके की गूंज, मचा हड़कंप। अपने जन्मदिन पर मां के पास नहीं जा पाया, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी लाखों माताएं मुझे दे रही हैं आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही। आज भी बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना ही मेरी प्राथमिकता है, बोले तेजस्वी यादव। झारखंड के हजारीबाग में सवारियों से भरी बस नदी में गिरी, 6 लोगों की हुई मौत, 40 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। भाल्की के टाउन हॉल के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति के सामने लगा हुआ कर्नाटक फ्लैग का 25 फीट लंबे पोल को अज्ञात लोगों की ओर से काटा गया। इसका पता चलते ही कन्नड़ संघ के अलावा कर्नाटक रक्षणा वेदिके, कन्नड़ा साहित्य परिषद और दूसरी संगठनों के लोगों ने इसके खिलाफ धरना दिया। इसका पता चलते ही भाल्की के विधायक इस स्थल पर आकर जानकारी प्राप्त की। भाल्की के एएसपी पृथ्वी शंकर, सर्कल इंस्पेक्टर जी हेब्बलकर इस घटना स्थल पर आकर जांच की और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का विश्वास दिलाया। इस घटना को लेकर कई लोगों ने विरोध किया। भाल्की से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। कर्नाटक झंडा ಏನ ರಾತ್ರಿ ತೆರವಾಗ್ಯದ ಅದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗೀತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಇದು ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿವದಾರ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಂತು 20 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾಮಿನೇಟ್ 31 ಸದಸ್ಯರು ಕುಂತು ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಬುದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ झंडा ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ झंडाನೇ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅದದು। ಕನ್ನಡಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಆ झंडा ನಮ್ದು ಆತ್ಮ ಅದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕುಂತು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು झंडा ಕೊಡುವಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮ ಶಿವಸಾವ್ರ ತಗೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕುಂತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇದನ್ನು ತೆರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ। ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತೇವೆ। ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ತಡ ಆಯ್ತರಿ, ಈಗ ನಾವ್ ಏನಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆನೇ ಇರ್ತದೆ, ತುರ್ತು ಸಭೆ ಇದ್ರು ಏನಿದ್ರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆನೇ ಇರ್ತದೆ। ನಾಡ ಧ್ವಜನ ತೆರವಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾಡ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಲೀಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ತುರ್ತು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ತಾವು ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು। ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ, ಶೀಘ್ರನೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ। 22 ಅಥವಾ ಇದು 7 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಆಯ್ತು ಸರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದನ್ನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟನೆದವರು ತಾವೇನು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, November 1 ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಶಾಸಕರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಶಾಸಕರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾರ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಂತ ಯಾರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದು ಆಗ್ತದ। ಇದೇನದ ಹೊಂದ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಈ झंडा ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬೇಕು। कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा शहर में राजा कोली कब्बलिगा एसटी होराटा समिति द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ एक जुलूस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य कोली कुब्बलिगा एसटी होराटा के राज्याध्यक्ष लछप्पा जमादार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें कोली कब्बलिगा
तूती तलवार और अन्य आदिवासी समूहों के साथ अन्याय कर रही हैं। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान में कोली कब्बलिगा, तूती तलवार और अन्य आदिवासी समूहों को एसटी का दर्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 4 साल बाद भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों ने प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा कर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया, लेकिन अब बीजेपी सरकार कोली कब्बलिगा और अन्य समुदायों की अनदेखी कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने पार्टी के सांसदों को चेतावनी दी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट कैसे दिए जाएंगे और ये उनके वरिष्ठ सहयोगियों के लिए एक परोक्ष ताने की तरह एक झलक प्रदान करता है। शिवकुमार ने टिकट पर कहा, मैंने सभी विधायकों से कहा है कोई सौदेबाजी नहीं होगी। कुछ लोग डींग मारते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, ये एक मिथक है। शिवकुमार केपीसीसी पदाधिकारियों और भारत जोड़ो समन्वयकों की बैठक में बोल रहे थे। भारत जोड़ी मार्च 30 सितंबर को चामराजनगर जिले में गुंडलुपेट के रास्ते कर्नाटक में प्रवेश करेगी। कर्नाटक के शिवमोगा शहर के असंतुष्ट विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने ठेकेदार संतोष की आत्महत्या के मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं करने के लिए राज्य भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर में मीडिया से बात करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि राज्य के नेताओं ने उनके इस्तीफे के समय उन्हें मंत्री पद देने का वादा किया था। अगर वो क्लीन चिट के साथ विवाद से बाहर आते हैं, मैं फिर से मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए और कैबिनेट में सभी खाली पदों को भरना चाहिए। हैदराबाद के चार मीनार के करीब कांग्रेस युवा मोर्चा के नेतृत्व में छात्रों की ओर से आज राष्ट्रीय एकता दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चार मीनार के करीब झाड़ू लगाई गई और समोसे बेचकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने कहा कि हम डिग्री लेकर भी बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, परंतु उस पर अमल नहीं हुआ है। केंद्र सरकार को चाहिए कि अपना वादा पूरा करे। हैदराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश और उनके राज्य में सांप्रदायिक ताकतें समाज को बांटने और लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। राव ने यहां तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर धार्मिक कट्टरता बढ़ती है तो ये राष्ट्र को नष्ट कर देगी और इसके परिणाम स्वरूप मानवीय संबंधों में गिरावट आएगी। राव ने कहा कि धार्मिक कट्टरता चरम पर है। उन्होंने कहा कि वे अपने संकीर्ण हितों के लिए सामाजिक संबंधों में कांटे बोते हैं। वे अपनी जहरीली टिप्पणियों से लोगों में नफरत फैला रहे हैं। राव की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा हैदराबाद के परेड मैदान में हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के कुछ देर बाद आई है। राज्य सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया, जबकि केंद्र ने इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस नाम दिया है। మా తండాలో మా రాజ్యం మావా నాటే మావా రాజ్ అని గిరిజన బిడ్డలు అడిగితే తెలంగాణ ఉద్యమంలో నేను చెప్పినాను, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే డెఫినెట్గా తండాలు, గిరిజన గూడాలు, ఆదివాసి గూడాలన్నీ గ్రామ పంచాయతీలు చేస్తామని చెప్పినాం. ఈరోజు చేసి నిరూపించి దేశంలో పెట్టిన ఒకే ఒక రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఆ ఫలితమే 3000 పైచీలకు సర్పంచులు గిరిజన తండాలను వాళ్ళే రాజులుగా పరిపాలిస్తూ ఉన్నారని మనవి చేస్తూ ఉన్నా. వాళ్ళకి సహాయం కూడా అందిస్తూ ఉన్నాం. ఆదాయం తక్కువ ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలకు 5 లక్షల లోపల ఉన్నట్టయితే ఆ గ్యాప్ను కూడా భర్తీ చేసి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. 3 ఫేజ్ కరెంట్ ఇవ్వడం కావచ్చు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కావచ్చు, లైసెన్స్డ్ వ్యాపారాలలో 5% రిజర్వేషన్ కావచ్చు, గిరిజన గురుకులాలు కావచ్చు, 20 లక్షలు ఇచ్చే ఓవర్షిప్ స్కాలర్షిప్ కావచ్చు, అంటే బయట దేశాల్లో చదువుకునే స్కాలర్షిప్ కావచ్చు, ఈ ప్రైడ్ కింద గిరిజన పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించే విధానం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నాం. अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BBB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से
सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बिदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बिदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के बीच देश के एक इलाके में बम से हमले की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक स्कूल पर बम से हमला हुआ है, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। बताया गया है कि उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ में एक सरकारी स्कूल में बम विस्फोट हुआ। इस घटना से स्कूली छात्रों और शिक्षकों में दहशत फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीटागढ़ के साउथ स्टेशन रोड स्थित फ्री इंडिया हाई स्कूल में शनिवार सुबह 11 बजे तक कक्षाएं चल रही थीं। अचानक शिक्षकों और छात्राओं ने स्कूल की छत पर जोरदार धमाका सुना। इसके चलते छात्राओं में हड़कंप मच गया। स्कूल के 4 मंजिला छत पर बम विस्फोट हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बम को दूसरे बिल्डिंग से फेंका गया है। बम के धमाके से स्कूल की छत को क्षति पहुंची है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हमले में जान माल की कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। बताया गया है कि स्कूल घनी आबादी वाले इलाके में है। विस्फोट कैसे हुआ, इसकी छानबीन की जा रही है। अपने जन्मदिन के मौके पर जिले के कराहल कस्बे के मॉडल स्कूल मैदान में महिला स्वयं सहायता समूह के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जन्मदिन पर आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी मां के पास जाऊं, उनका चरण छूकर आशीर्वाद लूं। उन्होंने आगे कहा कि ये दृश्य आज जब मेरी मां देखेंगी तो उन्हें जरूर संतोष होगा कि लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उन्हें प्रसन्नता होगी। आपका आशीर्वाद हम सब के लिए बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी ऊर्जा है, प्रेरणा है। मेरे लिए तो देश की माँ, बहनें, बेटियां मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है, शक्ति का स्रोत है, मेरी प्रेरणा है।
झारखंड के हजारीबाग में भीषण बस दुर्घटना हुई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की सूचना है। हादसा टीटाझरिया के सिवाने पुल के पास पेश आया है। सूचना के अनुसार सवारियों से भरी बस नदी में जा गिरी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई है। बस गिरिडीह से रांची जा रही थी। ताज़ा जानकारी के अनुसार गिरिडीह से हजारीबाग जाने वाली शिव शक्ति एसी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गिरिडीह के पारसनाथ से कुछ लोग सवार होकर हजारीबाग की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में बस सिवाने नदी में गिर गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 से 3 लोग अब भी बस में फंसे हुए हैं। बाकी लोगों को शिवम बस और एम्बुलेंस से हजारीबाग ले जाया गया है। इस बस दुर्घटना में 40 लोगों के घायल होने की जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रमंडल खेलों के विजेताओं द्वारा दिए गए पदक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मॉडल प्रतिमा सहित 1200 से अधिक वस्तुओं की ऑनलाइन नीलामी शुरू हो गई है। ये नीलामी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज सुबह से शुरू हुई है। pmmomentos.gov.in वेबसाइट के जरिए ये नीलामी की जा रही है, जिसमें सभी लोग पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को खरीद सकते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर अद्वैत गडनायक के अनुसार ये पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी का ये चौथा संस्करण है, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस नीलामी के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि समय आ गया है, पीएम मोमेंटोस ऑक्शन 2022 लाइव हो चुका है। पंजीकरण करने और उस नीलामी में भाग लेने के लिए pmmomentos.gov.in पर जाएं, जिसमें प्रधानमंत्री को मिले उपहारों को लिस्ट किया गया है। बिहार में महागठबंधन की सत्ता में वापसी के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने पुराने वादों को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार के लिए बेरोजगारी और गरीबी आज भी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने महागठबंधन की सरकार के प्रति पूर्ण भरोसा जताते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो हालात हैं उसमें बीजेपी विधानसभा में भी अलग थलग पड़ चुकी है। आज महागठबंधन के दल इतने मजबूत हैं कि विधानसभा में बीजेपी इकलौती विपक्षी पार्टी बची है। सीएम नीतीश कुमार ने बीते कुछ समय जो कठिन निर्णय लिए हैं, उन तमाम फैसलों की जरूरत थी। राज्य में बीजेपी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को बढ़ावा देने के प्रयासों में जुटी है। बीजेपी चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। बेशक डायनासोर हजारों साल पहले धरती से खत्म हो गए हैं, लेकिन इन्हें लेकर आज भी रिसर्च जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में इन पर खोज चलती रहती है। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने चीन में अनहुई प्रांत के क्यानशान बेसिन में तोप के गोले के आकार के डायनासोर के अंडे की खोज की है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये अंडे कैल्साइट क्रिस्टल के समूहों से भरे हुए हैं। इस अद्भुत खोज के बारे में चीनी विशेषज्ञों ने विस्तार से जर्नल ऑफ पैलियोग्राफी नाम के एक नए शोध पत्र में प्रकाशित किया गया है। दोनों अंडे पूरी तरह से गोल हैं और क्रेटेशियस काल के हैं, जिसे डायनासोर की उम्र की अंतिम समयावधि के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि ये डायनासोर की एक नई प्रजाति के हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने समझाया कि उन्होंने अंडों के बड़े आकार और अंडे के छिलके की इकाइयों की तंग व्यवस्था के साथ साथ उनके अद्वितीय गोलाकार आकार का उपयोग करके इसका पता लगाया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाल्की के टाउन हॉल के पास कर्नाटक फ्लैग का 25 फीट लंबा पोल को अज्ञात लोगों ने काट दिया। स्थानीय संगठनों ने जताया विरोध। धार्मिक कट्टरता चरम पर, देश के लिए खतरनाक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में स्कूल की छत पर फटा बम, दूर तक सुनी गई धमाके की गूंज, मचा हड़कंप। अपने जन्मदिन पर मां के पास नहीं जा पाया, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी लाखों माताएं मुझे दे रही हैं आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही। आज भी बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना ही मेरी प्राथमिकता है, बोले तेजस्वी यादव। झारखंड के हजारीबाग में सवारियों से भरी बस नदी में गिरी, 6 लोगों की हुई मौत, 40 हुए घायल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।